Hi besties, welcome back to my channel. I'm getting bullied on the internet again for just being me and having thoughts, but that's just how it is. तब सबकी feminism तब निकल जाती, तब इनकी anti-bullying तब सब चली जाती है, तब they're like, oh yeah, let's grill her. Anyway, for today's video, I have decided to discuss my nightmare. ये फर्स्ट डेट के बाद, मतलब मैं एक डेट गई थी, and इसके बाद I was like, ये क्या था? Strangle me. What the fuck was that? मैं 2 बार ब्लाइंड डेट गई हूँ मेरी लाइफ में, और दोनों बार ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ. थैंक गॉड भगवान जी मेरे को बचा देते हैं चीजों से. कुछ गलत हो तो उससे भी निकाल दिया. कर्म बहुत आपके मैटर करते हैं. Another day, another drama, but not for me. All I think about is karma. Or the tea, let's start the Lord. I went on 2 like nightmare blind dates. Gonna talk about one because उसमें why is bitch obsessed with me and just don't understand. In a world full of Kanye West, be a Taylor Swift. Okay, so let them. Okay, मैं फिर से ब्लाइंड डेट पे गई थी नवंबर के. नवंबर was the time when I was loving like mad. And 25 में मैंने कम कर दिया. Okay, this guy reaches out to me in a club at my table with my friends. Okay, this guy comes up to me. Like I did not know this guy. Okay, he just comes up to me. So there's my table. तो एक नीचे लेवल पे था इस लड़के का टेबल. So his friend comes. Okay, and he's like, hi, have you met that? His name Barney Simpson. Hi, have you met Ted? Like, are you Barney? Because like literally that was so fucking cringe. I was like, nah, that just works for him. Okay, that's like Barney and Ted. You are not that. Okay, no. Then the entire night he's like kind of like lurking around trying to talk to me and everything. So he was like following me everywhere. He's like, no, I'll take you to the washroom and everything. And I'm like, this guy is not being this kind. ठीक है, मतलब मैं इतनी भी गधी नहीं हूँ कि मतलब हाँ ठीक है, he just want to go out with me. Like पूरा होता है. Then he's like, take my number. I'm like, why should I take your number? Because मैं इसका नंबर क्यों लूँ? He's like, ठीक है, मुझे अपना दे दो. I'm like, मैं नहीं दूंगी नंबर किसी को अपना. मैंने इसको मेरा नंबर नहीं दिया, ठीक है, बिकॉज ये एक रैंडम क्लब में मैं किसी को, मैं इससे पहली बार मिली हूँ जिंदगी में. बोला कि अब मैं इतने पुराने दिन चले गए हैं कि इस भाई साहब ने नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ रैंडम नंबर. I did not give this guy my number. I did not do any of that. And I was like, hello. And I'm like, hello. And then he's like, you remember me? And I'm like, who? This bitch, what? And then he's like, no, I got a number from your friend. And मैं मन में चिढ़ी हूँ, बोलते मेरे फ्रेंड ने इसको इसका नंबर क्यों दिया? I'm like, अच्छा ठीक है. उस लड़के से मैंने थोड़ा स्मॉल टॉक किया. मुझे अच्छा भी लगा एक तरीके से कि हाँ मतलब थोड़ा मूवीज में देखते हैं ना ऐसे किसी ने नंबर लिया आपका म्यूचुअल के थ्रू. मुझे एक बार से अच्छा भी लगा. तो देन ही इज टेलिंग मी कि अगर मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे भेजता तो कभी नोटिस ही नहीं करते, तो इसके लिए नंबर ढूंढना पड़ा. गलत फहमी है, मैं नोटिस कर लेती हूँ बैडली. I do notice a lot. तो मैं मेरे फ्रेंड को फोन करती हूँ, मैं बोलते हुए भाई तूने इसको मेरा नंबर क्यों दिया? And then he's like, oh, I saw you talk to him all night long. I'm like, yeah, I was just talking to him. I was bored and I was like a little, you know. मैंने बोला मेरा नंबर आज पर किसी को मत देना. मेरे को नहीं पसंद है जब किसी के पास मेरा नंबर जाता है, क्योंकि मैं नहीं देती हूँ लोगों को मेरा नंबर, इसलिए मैंने मेरा नंबर ही चेंज करवा दी. So this guy, he lived like close to my house in the sense like जूहू. अभी जूहू में ही बैठी हूँ स्टोरी बनाते हुए. JW के जूहू में हमारी फर्स्ट डेट हुई थी. JW के लोटस कैफे. भगवान ने ले ये स्टार्स. तो मैंने 2 हफ्ते लगाकर इसको 2 हफ्ते बाद मिली, क्योंकि मैं ना इतनी जल्दी नहीं मिलती हूँ किसी से. Then he takes me out and everything. हम लोग गए. Then he brings me a big bouquet. I was like, अगली बार ला रहे हो तो पिंक लाना, बिकॉज मुझे पिंक रोजेस सबसे अच्छे लगे अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो. मतलब 2 हफ्ते में थोड़े से बातचीत करने लग गई व्हाट्सएप पे. मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही, मतलब ना मैंने इसको स्नैपचैट पे ऐड किया था, ना मैंने इसको इंस्टाग्राम पे ऐड किया था. तो लाइक नेक्स्ट मैं इंस्टाग्राम पे तुमको वो एक्सेस ही नहीं दे रही. सिर्फ मैं मेरे फ्रेंड्स और जो इनके साथ मैं मतलब वर्क रिलेशन है या सेलिब्रिटी, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी बॉय. तुम मेरी लाइफ में अगर 2 हफ्ते के मेहमान हो, मैं नहीं तुम्हें फॉलो करूंगी. सॉरी. और ये इन जनरल रूल अप्लाई होना चाहिए. आई डोंट केयर इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, नॉन इन्फ्लुएंसर, इफ यू हैव फॉलोअर्स, यू डोंट हैव फॉलोअर्स, दिस शुड बी अ रूल. डोंट फॉलो बॉयज ऑन इंस्टाग्राम unless they are permanent. Keep it private until permanent, because if you follow him then breakup हो गया, तुम्हें embarrassment feel होगा. इसलिए सच्चा करो ही मत, क्योंकि देखो लोग टैब्स रख रहे हैं, ठीक है. there are people who are watching your business, ठीक है. तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारा बिजनेस दिख रहा है, but there are people. तो क्यों बताना ना बगल में छोरा है और तुम मोहल्ले में ढंडोरा बांट रहे हो. कोई अगर मुझे बोले why don't you post it, I'll be like I plead the fifth. I know I plead the fifth होता नहीं है यहाँ पे, बट इमोशन पे जाओ, भावनाओं को समझो. मेरी स्टोरी सुनाती कम चक्रत घर रूम आऊंगी कि हाँ ये हुआ, बीच में 10 खुद के इमोशंस बताने लग जाऊंगी. मेरे से बात करना एक कमिंग बैक टू द टॉपिक. चलो अच्छा था, फन था. तो मैं जान के ट्राई कर रही थी पता करने का कि हमारा कोई स्नेक म्यूचुअल तो नहीं. मैं थोड़ा स्लाइली पता करने का ट्राई कर रही थी. इन लोगों को जानता है, मैं इसके म्यूचुअल्स चेक कर रही थी, मैं इसका फॉलोइंग लिस्ट पूरा चेक कर रही थी. कोई भी ऐसा टाइप का चूतिया पर्सन मुझे दिखेगा तो मैं इससे बात करना बंद कर दूंगी. तो मैंने इसमें सब नहीं देखा. तो आई वाज लाइक ठीक है चलो फाइन. फॉर आवर फर्स्ट डेट वी वेंट टू लोटस कैफे इधर ओनली JW में, बिकॉज आई वाज लाइक मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, मुझे कुछ नहीं करना है. लड़कों के सामने मैं ज्यादा नहीं खा पाती हूँ, बिकॉज लाइक कैसा होता है ना, कुछ ये सब जो सोफों के बॉयज होते हैं उन्हें इतने मेजर टेबल मैनर्स होते
होते हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो पिज्जा खाता है विद फोक एंड नाइफ, दे ईट फ्राइज विद फोक एंड दे आर तो माय फ्रेंड्स। मैं बोलती हूँ भाई ये ऐसे कौन खाता है, जो मैं डेट पे जाती हूँ तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ, बोलते भाई अब मेरे नाखून, मेरे को खाना क्या होता है, हल्दीराम की या तो राज कचौड़ी खाना पसंद है, मुझे खाना पसंद है पनीर टिक्का मसाला और रुमाली रोटी। अब मैं रुमाली रोटी को फर्स्ट डेट पे लड़के के सामने ऐसे नहीं खाता, मेरा कंफर्ट लेवल हुआ ही नहीं उस लड़के के साथ। के बाद वो मुझे घर ड्रॉप करता है, ये ना क्लास ओके, तो जान के बहुत इसने मेरा यूट्यूब देखा होगा, तो ना खुद के पास भाई साहब के पास क्लास थी, ठीक है मेरी क्लास है, तो उसने बोल रहा था या यू नो आई हैव दिस बट आई वाज लाइक, ही वाज लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग माय कार, आई एम लाइक यू लिटरली हैव लाइक अ वे बेटर कार देन माइन, एंड ही इज लाइक या बट यू हैव इट ऑन योर ओन। मैं मन में सोचूं बिकॉज़ लाइक मेरा माइंड, अब जब कोई मुझे एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट भी करता है, मेरे को ये होता है कि इसने मे भी मेरा ये सब देखा हुआ है, पता है कि मुझे ये सब चीजें सुनना पसंद है, तो ये मुझे कर रहा है, बिकॉज मैं इतने ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जिनने मेरे को इस लेवल के ट्रस्ट इश्यूज दे दिए कि अगर कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, मुझे लगता है इसमें कोई मोटिव है मेरे को कॉम्प्लीमेंट करने का, समझ रहे हो। अगेन गो ऑन अ डेट, वी एंजॉय एवरीथिंग। दूसरी डेट थी, सडनली ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली एंड आई एम लाइक सडनली इतना सीरियसली बातें क्यों कर रहा है, आई एम लाइक सेकंड डेट पे लोग इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, देयर समथिंग सस। वो इस लेवल की बातें बोल रहा था मुझे कि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी, मतलब इसने कोई पिक्चर का सीन देखा है कि लड़का सेकंड डेट पे ट्रॉमा डंप कर रहा है आप पे, इसका जो ट्रॉमा था वो इस लेवल का एग्जैजरेटेड ट्रॉमा था कि कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि इसके साथ सच में ऐसे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नहीं घूम रहा था, he wouldn't wear a fucking Rolex on his hand, second of all he wouldn't go to top university, okay if he had such a tragic things happening to him, इसका क्या बहाना था, मुझे बोलता है कि my dad doesn't give me this, my dad doesn't give me that, मैंने बोला किसने दिया ये सब चीजें, ये भूल गया क्या कि मैं इससे क्लब में मिली थी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या लग रहा है कि मुझे ये सब ड्रम करेगा और मैं एकदम ऐसे आ जाऊंगी, oh my god baby so tragic, बोल रही हूँ हाँ so sorry क्या बोलूं, कुछ बिलीव लायक ही नहीं थी। तुम सुनते हैं ना बातें, पहले तो इसने 2 झूठ बोले, ठीक है पहले मुझे बोलता है आई ओन अ हाउस इन वर्ली, आई ओन अ हाउस, ठीक है मैंने बोला व्हाट डू यू डू क्या कर रहे हो तुम, तो बोलता है या पहुंचा मैंने डाल दी नाम डालेंगे, लाइक आई एम एन एक्सपोर्टर। तुम अपना बिजनेस हैंडल करने के बजाय तुम एक वीकडे पे एक लड़की के साथ घूम रहे हो रात के 1 बजे तक, मेरे पास तक इतना टाइम नहीं है जो एक यूट्यूब करता है फॉर अ लिविंग, मैं तक निकल जाती हूँ, बोलते आई डोंट हैव टाइम एंड यू हैव मोर टाइम देन मी, तुम अपेरेंटली एक्सपोर्टर हो, शॉर्ट बिच। घर जाती हूँ मैं डॉग बोलती हूँ कितनी झूठिया स्टोरीज पका रहा था, देन व्हेन आई गो होम ही सेंड्स मी अ पीडीएफ फाइल अबाउट फैक्ट्स अबाउट हिम, और मैं डॉल को बोल रही हूँ ये देखो एक्सपोर्टर की एक पीडीएफ बना रहे हो कि गेट टू नो मी, मैंने आज तक यूट्यूब पे वीडियो तक नहीं मिला है गेट टू नो, आई एम लाइक डॉल घंटा मैं इसके साथ जा रही हूँ, इसकी बातें सुन इस पीडीएफ में भी, और पता है उस पीडीएफ में भी खुल का सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर रहा है फुल ऑन, oh my god, उसमें इसके गट्स हैं कि oh my god मेरे पापा मुझे और पैसे नहीं दे, मतलब मैंने कहा इसकी प्रॉब्लम भगवान सबको दे दे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे डैडी मुझे पेंडर दिला दे, फिर मैंने बोला डैडी आप मुझे और क्यों नहीं दे रहे हैं चीजें, व्हाट द हेल, ठीक है तो मैं थर्ड डेट में मना करती, देन ही इज टेलिंग मी आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यू नो आई रियली थिंक यू आर समवन हु आई कुड बी सीरियस विद, आई एम लाइक मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ बाहर, के पागल हो गए दिमाग से, पता भी नहीं होगा मेरे लाइफ की कुछ भी, बट इस लड़के के तेवर देखो अब कैसे चेंज होंगे, यहाँ तक थर्ड में ठीक है कैसा लग रहा है कि हाँ बस एक अनोइंग सा रिच ब्रैट है, ये पोस्ट करता है मेरी जो पता है मेरा जो फर्स्ट एक्स बॉयफ्रेंड, मैं भूल भी चुकी थी इस लड़के का नाम, ही पोस्ट उसका कैप्शन वी आर नॉट लाइक दोस ब्रिटिश बॉयज वी आर इंडियन मैन वी डोंट गो फॉर गर्ल्स लाइक हर, पहले तो मैं इसको फॉलो नहीं करती, इसका एक पब्लिक अकाउंट था जो मैं ऑब्वियसली यू नो टैब से रखी थी बिकॉज़ आई एम लाइक क्यों नहीं टाइम पास, तो मैं मेन अकाउंट से ये स्टोरी देखती हूँ, ये लड़का और ये खड़े हैं और ये लोग बैक कैमरा करते हैं एंड दे आर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियोस एंड आई एम लाइक दे डोंट गो फॉर गर्ल्स लाइक, आई एम लाइक चूतिए पहले वाला तो तूने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है अगर तू इतना मैन है और अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तू मेरा एग्जिस्टेंस मेरी बातों को फर्क तक भाव ही नहीं पड़ता, तो फकिंग ऑब्सेस्ड विद मी, क्या बात, पहले तो तुमने मुझे ब्लॉक किया, ठीक है जो फर्स्ट वाला किया, ठीक है उसके बाद वो मेरे से इतना ऑब्सेस्ड है कि उसने मुझे मेरे स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेजी, क्योंकि मुझे पता चला उसने रिक्वेस्ट भेजी है कैसे, क्योंकि जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपको कोई ऐड करता है तो मुझे दिखता है डैश एडेड यू, दैट्स हाउ आई नो, ये तीसरा चूतिया जो मैंने टर्न डाउन किया, जिसको मैंने रिजेक्ट किया, कोई लंदन का लड़का तो लंदन बॉयज के तुम हो नहीं, वो तो तुमको अटेंशन देंगे नहीं, ऑल्सो लंदन बॉय से आता है, ये मेरे लंदन के बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करता है, this guy texted me about you and the literal caption was, bro let's show that bitch who we are and I'm like ये क्या गधा है, मैं उस लड़के को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, उसका और मेरा कुछ झगड़ा नहीं है, तो जाके उसको पकड़ जिसके साथ मेरा बैड ब्लड सीन है, वो तो तुझको मिलेंगे नहीं, I'm like at least उसको तो पकड़े जिससे मुझे बॉदर हो, and I'm like ये कितना पागल है, I'm like what the fuck was this, I'm like इसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, और मैंने कहा उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है, 3 साल पहले मैं इसके साथ थी, 3 साल पहले, 3 साल में अभी तक इसके पास एक न्यू पर्सन टू हेट नहीं मिला है, 3 साल में लाइफ आगे नहीं बढ़ी है इनकी, what the fuck, and apparently my ex and this guy were like are like brothers and I'm like तेरे साथ विदा लेवल शट हुआ है, बट इस बार एक लड़के ने किया है, जब मुझे ये पता चला ना कि दिस गाय यू नो मैं क्या 2+2 मुझे कनेक्ट करने नहीं आता है कि हाँ वो उसने उसको भेजा था मेरे पास,
तो आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर अगर मैं उसके साथ क्लोज जाती, अगर मैं उसके साथ कुछ होता, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सीरियस थिंग. इट वुड नॉट बी अ फकिंग हाई स्कूल स्टूपिड प्रैंक ऑन मी. जब ऐसा हुआ ना मेरे साथ, मैं आजकल के डेट में मतलब मुझे ऐसा डर लगता है किसी के साथ, बिकॉज आई एम लाइक, मैं उस लड़के से अटैच नहीं थी, बट द फैक्ट दैट someone sent someone and that someone came to do this to me because like of someone's hatred towards me, of something that even I didn't do. मुझे आप हेट करते हो बिकॉज मैंने खुद के लिए बोला. मैंने अपने पैथेटिकनेस में और जेलेसी में डूबे हुए हो. क्या आप रियलाइज नहीं करते हो आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपके एक्शन के? बिकॉज मैं थोड़ा सा डरती हूँ, लाइक मतलब डरती नहीं, लाइक ऐसे, लाइक आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ समवन, बट लाइक आई गेट वेरी दिस, लाइक आई हैव issues with people now because I feel like I don't know who's coming there with like what motive, like someone is either physically using you or doing something like that. So it's just, I was like, this is not okay. I texted that guy also. I'm like, and he's like, okay, please don't talk about this, don't show it to anyone. And I'm like, if I talk about it, not talk about it, it's my story, and what I can tell you is कि तुमको, and I was like, don't do this to anyone. Girl, boy, किसी के साथ भी ये नहीं करो आप. बहुत गलत चीज़ है ये करना किसी के साथ, किसी को. चलो भगवान जी, थैंक यू. बट हाँ, तो इस वे में मुझे बहुत वो लगता है कि लोग किस लेवल पे स्टूप करते हैं. तो मैंने उस लड़के को बोला भी है, लाइक देखो 3 साल हो गए हैं, यू लिटरली चीटेड ऑन मी, और तुम मेरे तरफ हेटेड पालते हो बिकॉज 3 साल पहले मैंने तुम्हारे ऊपर एक स्टोरी टाइम वीडियो बना दिया और 4 लोगों ने तुमको रिकॉग्नाइज कर लिया उस वीडियो से. तो क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा उस चक्कर में तुम मेरे पीछे किसी को भेज रहे हो ये सब करने के लिए. मैंने बोला मैं ये बात डाल के, इफ आई पोस्ट दिस एंड आई पोस्ट इट विथ योर आइडेंटिटी, हाउ डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट? एंड मैंने कहा आई विल पोस्ट इट, मुझे क्या है, जाओ कुछ जो करना करो, मैं देख लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी. तो ठीक है, मैंने ये सब नहीं किया. अब जब कोई भी लड़के के साथ मैं डेट पे जाती हूँ, पहले तो उसके बाद में सिर्फ एक लड़के के साथ गई थी डेट पे, वो तो जाना ही था. वो ऐसा नहीं था, वो किसी से आया नहीं था, थैंक गॉड, होप नॉट, बट हाँ वो नहीं था. उससे आई वाज दैट गाय फॉर लाइक अ लिटिल व्हाइल, बट इट्स फाइन, हो गया उसके साथ भी. उसको आल्सो आई ब्लॉक्ड हिम. बट इसलिए अब जब मैं डेट्स पे जाती हूँ किसी के साथ, या अगर मैं कोई लड़के से मिलती हूँ, तो मैं बहुत आई मेक श्योर कि या तो वो एकदम मेरा इनर ट्रस्टेड सर्कल का हो. बिकॉज द थिंग इज, इवन व्हेन आई हैंग आउट विद सर्टेन पीपल, उसमें मेरे को पता चलता है कि ओ ये पर्सन तो मुझे पसंद ही नहीं करता था, एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड. उसमें मुझे पता चल रहा है कि हाँ वो मेरे साथ घूम रहे हैं, बट उसमें से उनका कोई फ्रेंड मुझे पसंद ही नहीं करता. आई एम लाइक, मेरे साथ तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तुम मेरे पोस्ट क्यों लाइक कर रहे हो इफ यू डोंट लाइक मी? इट्स जस्ट सो वियर्ड. तो आई वाज लाइक, यू गाइज डोंट हैव बॉल्स. दीज आर थिंग्स दैट इवन गर्ल्स डोंट डू. सम डू बट मोस्ट गर्ल्स डोंट डू. मैंने कहा कुछ काम करो, धंधे करो जिंदगी में जाकर, सच में काम करो. तेरे बाप को ये सब पता चलेगा ना, सब गाड़ी वाड़ी सब छीनेंगे तेरे, तू गिरी लड़की कहीं का. गर्ल्स एंड गेज भी ये नहीं करते हैं जो तुम लोग करते हो. तो हाँ, अब जब मैं कोई किसी भी चीज के साथ जाती हूँ तो मैं उसको एकदम बैकग्राउंड चेक करती हूँ उसका, हर वे में, ये वे में. और तब से तो मुझे कोई मिला नहीं, ये 2 बार हुआ है लाइफ में, बट हाँ 2 बार हुआ है तो ऐसा लगता है यार कि क्या है. इसलिए मैं अब कोई ब्लाइंड डेट पे जाती नहीं हूँ. मैंने कहा हेडशॉट, मैं कोई ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रही हूँ, जो fuck off. So yes besties, that was all for today's video. Hope you guys liked today's story time video. What I'll say is यार मतलब ये किस टाइप के हाई स्कूल बुलशिट चीजें होती हैं. मैं ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब जिनका मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, थॉट्स ऐसी चीजें होती हैं. और ये besties, I love you guys so much. Thank you so much for watching.